تو جناب خبر وہی انداز نیا کا آغاز کرتے ہیں آج کی اچھی بات سے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے ناظرین اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، ناموافق حالات ہیں، تو صرف ایک بار اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا ہے آپ کو جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ کیا زبردست اگزامپل آپ نے دیے فواد، کیونکہ ہم تو روزانہ نیچر کو دیکھتے ہیں، قدرت کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو پہلو آپ نے اجاگر کیا ہے اس نظر سے شاید ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ذرا مشکلات تو آتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، انسان کو کبھی کسی صورت نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف مایوسی ہے، نا امیدی نے اس معاشرے میں نا ایک آپ دیکھیں گے فواد عجیب سا کوئی ماحول پیدا کر رکھا ہے۔ ہمارے آس پاس بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نارملی بھی ہر بندہ مایوس ہے، ہر انسان خود سے حالات سے مایوس نظر آتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کوئی بھی معاشرہ اور ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ ہوپ فل نہ ہو۔ بالکل، اور ہوپ فل ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے دین میں بھی کہا جاتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے، امید کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم انہیں آگے بڑھنے کا جذبہ اور بہتر سے بہتر کی تلاش کی امید نہیں دیں گے تو یقیناً وہ لوگ مایوس ہوں گے اور خدشہ ہے کہ وہ کہیں غلط راستے پر بھٹک نہ جائیں۔ تو یقین کریں کہ ہمیں اپنے نوجوان جو ہمارا ایسٹ ہیں، آگے ہمارا مستقبل ہیں، ان کو ہمیں نا امیدی سے بچانا ہے، ان کو بہتر مستقبل کے لیے ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور دیکھیں نا، یہ بات تو فواد تحقیق بھی بتاتی ہے، ریسرچ بھی بتاتی ہے۔ میں تھوڑا سا وہ بھی کوٹ کر دیتی ہوں کہ جو لوگ پر امید رہتے ہیں نا، وہ مشکلات سے نمٹنے کا ہنر جانتے ہیں، اس کے لیے بہت بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ موجودہ تناؤ کے بجائے اپنے مقاصد کے حصول کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ امید ٹوٹنے کے ساتھ خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی کہ ظاہر ان کا ایک پورا انہیں لگتا ہے کہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ لیکن اب بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں ٹوٹنے سے بچانا ہے، اتنا مضبوط ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے کہ مایوسی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکے۔ تو بطور معلم، بطور مصنف اور بطور مقرر، یہ ہماری ناظرین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جینے کی ایک نئی امید دیں، کیونکہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، امید انسان کے لیے ایک مضبوط چٹان اور طاقت کے سرچشمے کی مانند ہوتی ہے۔ تو آج کی اچھی بات ہے کہ آپ نے، ہم نے، کسی بھی پاکستانی نے مایوس نہیں ہونا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کہتا ہوں شیرین، میں اکثر یہ بتاتا بھی ہوں کہ سب سے بڑی نعمت ہمارا ملک پاکستان ہے۔ ہم آزادی کی فضا میں ہم اس کا سانس لے رہے ہیں، تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتنا بہتر ہیں ہم بہت سے لوگوں سے، تو شکر ادا کریں اس بات پر۔ اور اسی کے ساتھ وہی انداز میں سب سے پہلے اب نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران سے معاہدہ ہو جانے کی امید کا اظہار کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، ڈیل کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ نیتن یاہو کو فون کر کے اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے بھی روک دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں کیا باتیں ہوئی ہیں، پروگرام میں آگے چل کر وہ بھی بات کریں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے دوران لبنان پر حملے کیوں کیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم سے شدید اظہار برہمی۔ ٹیلی فون پر گفتگو میں تلخ جملوں کا دونوں کے درمیان تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دیا ہے۔ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر نے کیسے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سرزنش کی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے فواد، لیکن اب دیکھیں نا کہ دوغلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بھی تو ٹھٹائی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جنوبی لبنان میں پلان کے تحت کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا کہ حزب اللہ کو حملے روکنا ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر بن غویر نے کہا ہے کہ امریکی صدر کو نہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ جنوبی لبنان پر قبضے کے بعد اسرائیلی فوج کے مختلف مقامات پر حملے اور مزید ناظرین 8 شہری شہید ہوئے ہیں، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ اسرائیل کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن خیر بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ہمت کی ہے۔ تفصیل سے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، اور اسرائیلی فوج کی لبنان میں جاریت پاکستان نے بھی شدید مذمت کی ہے۔ معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں، لبنان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے خطاب کیا ہے اور تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا عزم بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اور جی، گلگت بلتستان کی بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ کچھ ہی دن رہ گئے، انتخابی گہما گہمی ہم دیکھ رہے ہیں عروج پر ہیں، سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں بہت تیز ہوتی جا رہی ہیں۔
नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। बिलावल भुट्टो बेस्ट गौहर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं और गिलगित के हल्का GBA 1 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी जलसा होगा। IPP के उम्मीदवार मौलाना सुल्तान रईस और राना नज़ीर अहमद ने इस हवाले से खिताब किया। जो IPP का जलसा हुआ था, ये जलसा रहा, बड़ा अच्छा ये जलसा रहा। हमने देखा कि अब काफ़ी ज़्यादा मतलब जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा, और एक अच्छी चीज़ शीरीन ये देखने में आ रही है कि नौजवानों का जो पलड़ा आप बता रही हैं वो इसमें काफ़ी IPP की तरफ काफ़ी राग़िब है, काफ़ी गालिब दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ खेलों की दुनिया से भी आपको हम आगाह करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में आज टकराएंगे। मैदान लाहौर में सजेगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन भी हुआ है। 3 मैचेस की सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल है। ये एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानी टीम के लिए। अच्छी बात है, क्रिकेट टीम के हवाले से भी अच्छा लगता है जब अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन जी अब मशरिक़ वस्ता की सूरत-हाल क्या रूप इख्तियार कर रही है। लगता है कि आइंदा 1 हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और डील के तहत जंग बंदी में तौसी की जाएगी। अपने हुर्मस को भी दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ही सीम्स वेरी पॉजिटिव फवाद, और जब भी ये इस तरह की पॉजिटिव बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। हम तो हमेशा एक नई उम्मीद बांध लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। और आज हमने वो जो अच्छी बात भी की ना कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया है तो उससे भी हम ये समझते हैं कि एक अच्छी होप हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की शीरीन। इसराइल को लबनान पर हमलों से उन्होंने रोक दिया है। नेतन्याहू को उन्होंने फ़ोन किया है और वाज़े किया है कि अब कोई इसराइली फ़ौजी बैरूत नहीं जाएगा। जो फ़ौजी रास्ते में थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। अमरीकी सदर की अहम नुमाइंदों के ज़रिए हिज़्बुल्लाह से भी गुफ्तगू हुई है। ये भी एक बहुत अच्छा एक इक़दाम है अमरीकी सदर का कि वो हिज़्बुल्लाह से भी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले अब नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। ये बात तो तय है कि ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो मुज़ाकरात जिस हवाले से ईरानी करते हैं ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं और इनसे अच्छा मुज़ाकरातकार किसी को नहीं कहा जाता। ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने आगे कुछ बात की थी कि ख़त्म हुए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना हुर्मस की बंदिश से तेल की कीमतें भी बढ़ी तो फिक्र नहीं। बातचीत मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं है कि हम बम गिराना शुरू कर दें। मुज़ाकराती अमल के दौरान लेबनान पर हमले क्यों किए, ये एक बहुत ही अहम तरीन अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म पर शदीद बरहम नजर है, सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, शदीद बरहम नजर है। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तल्ख जुमलों का भी कुछ तबादला हुआ। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अमरीकी सदर ने देर कर दी, लेकिन दुनिया तो पहले ही कह रही है, दुनिया तो पहले ही कह रही है कि नेतन्याहू हवासुल बाख्ता शख्स हैं, एक पागल शख्स हैं, एक नाशुक्रे। हाँ, ये गुफ्तगू होनी चाहिए थी। लेकिन खैर अमरीकी सदर को वो कहते हैं ना कि देर आयद दुरुस्त आयद। अब उनको ख्याल आ गया है कि जी सारी फसाद की जड़ एक शख्स है जिसने दुनिया में तबाही फैला रखी है और वो है बेंजामिन नेतन्याहू। एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ना होता तो तुम जेल में होते। बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपको याद होगा कि कैसे अमरीकी सदर ने उनको जेल जाने से बचाया है। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी सदर बिन्यामीन नेतन्याहू को ये कह रहे हैं। वैसे फवाद कोई दो राय तो है नहीं। आप देखिए ना कि बच्चों के जहनों में एक अलग किस्म का एक हेटर्ड है। क्यों? क्योंकि एक तो पैलेस्टाइन इशू, फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ओवरऑल भी इसके बाद फिर जिस तरह से ये वाला मामला जोर पकड़ता रहा, मशरिक़ वस्ता जितना अनस्टेबल कर दिया गया है, तो ज़ाहिर इसमें तो हमने पहले भी देखा है कि जहाँ बातें आगे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ती थी तो वहाँ इसराइल की जानिब से कोई नई चाल चल दी जाती थी, जिससे मामला स्टैंड स्टिल होते थे। तो बैरूत पर हमलों से इसराइल दुनिया भर में मज़ीद तनहा हो जाएगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू का अगर हम जिक्र करें तो ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि तुम क्या अहमकाना हरकतें कर रहे हो। बात दुरुस्त की है उन्होंने, बिल्कुल दुरुस्त की है। और नेतन्याहू का अगर आप रिएक्शन देखें ना तो नेतन्याहू का जो रिएक्शन रिपोर्ट हो रहा है वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो रिपोर्टिंग हमारे सामने आ रही है वो गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। यानी कि एक बॉस है और बॉस के सामने जिस तरह आप ओके ओके करते रहते हैं, यस सर ओके सर ये हो जाएगा, तो ओके ओके वो करते रहे हैं। तो उनका
جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں شاید بہت زیادہ طاقتور انسان ہوں، تو وہ بھیگی بلی بنے رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے. تو آئی ہوپ وی وش کہ اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ بنیامین نیتن یاہو نے ضرور سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں پلان کے تحت کارروائیاں جاری رکھے گی. صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی اب بھی برقرار ہے. دیکھیں نا آپ کہ اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد بھی وہ احمق شخص، وہ بالکل پاگل شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈھٹائی اس کی برقرار ہے. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ حزب اللہ کو حملے روکنا ہوں گے. اسرائیلی وزیر بن گوئر نے کہا ہے کہ امریکی صدر کو نہ کہنے کا وقت آ گیا، یعنی اپنے زون سے یہ باہر ہی نکلنے کے لیے تیار نہیں نکل رہا. حالانکہ یہ جس گفتگو کا ہم نے حوالہ دیا، کتنا کیٹیگوریکلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی. اب حزب اللہ کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، یہ اسرائیلی موقف ہے. جنوبی لبنان پر قبضے کے بعد اسرائیلی فوج کے مختلف مقامات پر حملے باز نہیں آ رہے، وہی روش انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے. مزید 8 شہری شہید ہوئے ہیں. 2 مارچ تب تک شہادتوں کی تعداد اگر ہم آپ کو بتا دیں کوئکلی اسٹیٹس کے مطابق ناظرین 3,500 کے قریب پہنچ گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے بلکہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو رہا ہے. درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. حزب اللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کی حمایت کر دی ہے. یہ بڑا ایک پازیٹیو سائن ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی کی حمایت کی گئی ہے. حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ ہم پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مکمل جنگ بندی لبنان کی سرزمین سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء سے مشروط ہے. بالکل درست بات ہے کہ جب تک لبنان سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء نہیں ہو جاتا اس وقت تک مکمل جنگ بندی نہیں ہو سکتی. اور جی اسرائیلی فوج کی لبنان میں جاریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس کا ظاہر ہے پاکستان نے ہمیشہ کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اپنا نیریٹو پاکستان نے بڑا کھل کر، بڑا اوپنلی، بڑا کیٹیگوریکلی پریزنٹ کیا پوری دنیا کے سامنے. پاکستان نے جی کی ہے شدید مذمت اور یہ کہا ہے کہ معاملات بات چیت سے حل کیے جائے. ہم ہمیشہ نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں، ہم تو میڈیٹر بھی رہے ہیں بہت سارے معاملات میں، اور اسپیشلی مشرق وسطیٰ کی سچویشن میں لبنان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے. اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا یہ خطاب تھا. انہوں نے کہا کہ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے. پاکستان لبنان کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے. لبنان اور پاکستان نے ہمیشہ سے سفارتی کوششیں جاری رکھی ہیں، اور یہ ایک بڑا اہم کردار ہے پاکستان کا کہ پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر، سفارتی میدان میں ہمیشہ سے جب بھی کسی ممالک کے درمیان تناؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سفارتی کوششوں سے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر، اس جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی ڈالے. لبنان پر اسرائیلی حملے جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا اظہار تشویش بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ کو بھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار اقوام متحدہ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ ایران مذاکراتی عمل میں تعطل کی خبر ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی یہ سچویشن سٹینڈ سٹل ہوتی ہے تو وہاں پر سب سے پہلا امپیکٹ پڑتا ہے جی عالمی منڈی میں. اور کوئکلی ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے ایز وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو ہونا ہی تھا. امریکی کروڈ آئل کی کوئک سٹیٹس بتائیں تو 91 اور برطانوی خام تیل $94 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے. ڈائریکٹ امپیکٹ دیکھیں نا آئل مارکیٹ دکھاتی ہے. پھر ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پھر پورے ساری کنٹریز پہ پڑتا ہے نا، معیشت پہ پڑتا ہے. پھر گلوبلائز ورلڈ میں ہر چیز سپلائی چین اس کی متاثر ہوتی ہے. پانی نہیں، گیس نہیں، بجلی نہیں، انفراسٹرکچر تباہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. جی ہاں بالکل شہر قائد کی بات ہو رہی ہے. تو شہر قائد میں جی ہاں مسائل کے انبار ہیں. بالکل آپ نے درست کہا، انبار ہیں مسائل کے، یعنی کہ 1-2 مسئلے نہیں ہیں، انبار ہیں مسائل کے. شہریوں کا جینا دشوار ہے انہی مسائل کی وجہ سے، کیونکہ کراچی میں نا کہیں عوام کو پینے کے پانی کی تلاش ہے تو کہیں گندگی اور کچرے کے ڈھیر نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. بچتے بچاتے اگر آپ اس کچرے کے ڈھیر سے نکل بھی آئیں تو آپ کو ایک ایسی سڑک پہ آنا پڑتا ہے جہاں کا جس کا انفراسٹرکچر ہی تباہ ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کمیوٹ اگر لیٹس سے کہ 15-20 منٹ کا ہے تو اس تباہ حال انفراسٹرکچر کی وجہ سے وہ آپ بہت آرام سے 1 سے 1.5 گھنٹے کا. اور یہ کہہ سکتے ہیں شیرین کے کراچی کے شہری روز ہی اذیت میں مبتلا ہیں اور روز ہی ان کو ایک نیا امتحان دینا پڑتا ہے، چونکہ مرکزی سڑکیں، سروس روڈز یا محلوں کی گلیاں ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں.
सदर को एम ए जिना रोड से मिलाने वाली एक बड़ी अहम सड़क है। यहाँ भी जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। शाहनवाज अली कादरी जो हमें आगाह रखते हैं कराची की सूरत हाल से, हमें मुसलसल वो आगाही दे रहे होते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या मुश्किलात दरपेश हैं। तो शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये बताइए कि चूँकि ये एम ए जिना रोड से लिंक कर रही है ये रोड, और बड़ी अहम शाहरा है, और ये इस शाहरा को मिलाती है पार्किंग प्लाजा से, और इस शाहरा पर एक बड़ा होटल भी कायम है, और जहाँ पर कराची वाले बड़े शौक़ से खाना खाने के लिए जाते हैं, और इसके साथ साथ इंटरसिटी बस अड्डे भी इस शाहरा पर वाक़ हैं। इतनी अहम शाहरा होने के बावजूद भी इस शाहरा की किस्मत आखिर क्यों नहीं बदल रही शाहनवाज? फवाद, जैसा कि आपने भी कहा कि हम शहर के जो है मसाइल बताते हैं, और शहर की कोई भी सड़क हो, चाहे वो मरकज़ी सड़क हो, चाहे वो सर्विस रोड हो, या जो अंदरूनी गलियां हो, इस वक्त शहर की अक्सरियत जो है टूट फूट का शिकार है। और जैसा कि आपने भी बताया, और मैं इस वक्त ऐसी अहम शाहरा पे मौजूद हूँ जहाँ पर जो है यहाँ के मकी है, ये यूसी टैनी है, और कल हमने आपको यहाँ से ही अपडेट की थी। तो ये उसकी एक और जो है मसाइल की एक बड़ी वजह यहाँ पर है कि यहाँ पर सड़कें भी नहीं हैं। ये सड़क जो है मुहर्रम के दिनों में शहरियों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ज़्यादातर शहरी जो है एम ए जिना रोड से यहाँ पर पार्किंग प्लाजा तक जाते हैं। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि शहरियों की जो गाड़ियाँ हैं, रक्शे हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनके टायर ख़राब होते हैं, किसी का टायर आउट टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पर बस अड्डा भी है, तो शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं, तो ख़ासे परेशान होते हैं। अगर मेरे कैमरामैन रिजवान अगर आपको दूर तक दिखा सके, तो जहाँ तक नज़र आ रही है आपको सड़क टूटी हुई नज़र आ रही है। एक मशहूर रेस्टोरेंट इसके बिल्कुल साथ मौजूद है, और होना तो ये चाहिए था कि इसको मॉडल सड़क बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ना इंतज़ामिया नज़र आती है, ना ही मेयर कराची नज़र आते हैं, और ना ही यहाँ पर जो यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर गटर के ढक्कन भी मौजूद नहीं है, और कल भी हमने आपको दिखाया था कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो इस यूसी और जिना टाउन का बुरा हाल है, और लोग दुआइयाँ दे रहे हैं, ना उनको पानी मिल रहा है, ना उनको सड़कें मिल रही हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने इस बार बहुत बड़ी गलती की है कि मेयर कराची को मुंतखब किया, और अगर मुंतखब हो गए थे तो उनको काम करना चाहिए था। चलें जी, आवाम को तो खैर ये ख्याल आया है कि उन्होंने मेयर कराची को गलत तरीके से मुंतखब कर लिया, और अगर उनको मुंतखब कर भी लिया गया है तो उनको अब कम से कम काम करना चाहिए। लेकिन शायद मेयर कराची ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी अपना काम सही तौर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन समा अपना काम जारी रखेगा, और समा अवामी नुमाइंदों को जगाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम शाहरा से मुताल्लिक़ बता रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी रिपोर्टिंग से मेयर कराची जाग जाए। अच्छा, ये तो आप उम्मीद करते हैं ना, लेकिन कुछ कहते हैं ना, हकीकत कुछ होती है, दावे अपनी जगह होते हैं। अब कराची को जदीद शहर बनाने के दावे अपनी जगह, लेकिन 4K चौरंगी की टूटी फूटी सड़कें शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी हैं। शहरी कहते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा सिर्फ बयानात ना दें, खुद आकर देखें कि अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तो खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। देखते हैं ज़रा 4K चौरंगी के अतराफ आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का किस हद तक तबाह हो चुका है। रक्शे उलट जाते हैं, किसी दिन कोई बड़ा डंपर उलट गया तो क्या मामला होंगे। मुर्तज़ा आपसे हमारी गुजारिश इधर आए, उसको देखें, ये भी 4K, ये भी कराची का हिस्सा है। साल बदलते रहे, तरक्की के दावे भी होते रहे, अगर कुछ नहीं बदला तो 4K चौरंगी से मंगो पीर चुंगी नाके तक जाने वाली इस सड़क की हालत। ये मनाजिर किसी पहाड़ी इलाके के नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हैं। मोटरसाइकिल सवार हों या गाड़ी चलाने वाले, हर शख्स इस सड़क पर मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस रोड की जो हालत है ना, वो दिन ब दिन बुरी ही होती गई है। आया बारिश के दिन हो, गर्मी का अयाम हो, सर्दी का अयाम हो, ये रोड शदीद तकलीफ का बाइस है। टायर भी इतने ख़राब हो जाते हैं कि हम बेड़ा गर्क हो जाता है, पंचर लगवा के तंग हो गए। मुर्तज़ा साहब से कहूँगा आएँ इधर विजिट करें, आप देखें तो सही इधर आके। लोग मुतालबा करते हैं कि मेयर कराची खुद यहाँ आकर सूरत हाल का जायजा लें और शहरियों की मुश्किलात को महसूस करें। मेयर साहब से यही दरख्वास्त है कि हमारी सड़कें बना दी जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी, इसलिए कि बहुत परेशान है। ये रोड आवाम ने अपने पैसों से डलवाया है, ये मट्टी डाल के सीधा करवा रहे हैं। आगे जाके देखें, मजदूर आगे काम कर रहा है, ये भी अपने आप कर रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, वरना इधर कोई गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। आए दिन के हमारे गाड़ी के
काम निकलने में नुकसान हो रहा है। रोजाना हजारों गाड़ियों की आमद-रफ्त वाली तकरीबन 2 किलोमीटर तवील ये सड़क शहरी हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस का इम्तिहान बन चुकी है। इस सड़क से गुजरने वाले सवाल करते हैं मेयर कराची से कि उन्होंने जिन सड़कों की तामीर का वादा किया था, तो इस सड़क की तामीर कब शुरू होगी। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जनाब, मुल्की मईशत की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं 2026-27 के वफाकी बजट की, जिसके लिए हुकूमत ने अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर कर लिए हैं। 4,715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर कर लिया गया है। अगले साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़ किया गया है। हुकूमत ने आइंदा बजट में आवाम से सरचार्ज की मद में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान तैयार कर लिया है। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ समाज शकील अहमद से। जी शकील अहमद, बताइएगा। देखिए, नए माली साल 2026-27 के वफाकी बजट के अहम मुआशी अहदाफ तय कर दिए गए हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि नेशनल डेवलपमेंट आउटले जो है उसका वॉल्यूम तय किया गया है, उसकी मंजूरी दी गई है, जो कि 4,715 अरब रुपए है। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें से वफाकी हुकूमत सिर्फ 1126 अरब रुपए खर्च करेगी और सूबों का 3,138 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती प्लान है, और जबकि दीगर मुख्तलिफ वफाकी सरकारी इदारे हैं SOEs, वो 451 अरब रुपए अलग से खर्च करेंगे। वफाकी हुकूमत की माली पोजीशन सूबों के मुकाबले में अच्छी खासी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वफाक जो है वो जो बजट मुख्तस कर रहा है तरक्याती मनसूबों के लिए, वो काफ़ी कम है, जबकि सूबे आगे निकल गए हैं। पिछले 8 साल से वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट जमूद का शिकार है, लेकिन जो सूबे हैं वो मुसलसल अपना तरक्याती बजट जो है वो बढ़ा रहे हैं कागजों के ऊपर। अगर देखा जाए तो बाद सूबों में उस तरह की तरक्की भी नहीं हुई, लेकिन अगले माली साल के लिए सूबा पंजाब सबसे आगे जा रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 1450 अरब रुपए का तरक्याती प्लान जो है वो प्रपोज किया है, और सिंध हुकूमत 816 अरब रुपए अगले साल तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगी। उसके बाद KPK 564 अरब और बलूचिस्तान 308 अरब रुपए खर्च करेगा तरक्याती मंसूबों पर। वफाकी हुकूमत ने जो PSDP प्रपोज किया उसमें सबसे ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर 729 अरब, इसके अलावा सोशल सेक्टर पर 187 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि तालीम पर 78 अरब, सेहत पर 24 अरब और अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों का जो बजट है वो 70 अरब रखा गया है। 63 अरब था, रिवाइज किया गया था इस साल, लेकिन अगले साल उसमें इजाफा किया गया है। सेहत और तालीम के जो मनसूबे हैं उनके लिए कम फंड्स रखे गए हैं, और बाकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे हैं बाज़ उनके लिए रकम कम रखी गई है। अगले माली साल के बजट में टैक्सेस और साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू है उस पर इन्हिसार किया जाएगा, और आवाम की जेबों से पैसे निकलवाए जाएंगे 2156 अरब रुपए औसतन हर साल पेट्रोलियम सरचार्ज की मद में, और अगले 5 साल में ये मजमूई तौर पर 10,780 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे, और आवाम के ऊपर बोझ आएगा, महंगाई बढ़ेगी, अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा होगा। तो नया माली साल का जो बजट है वो टैक्सों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हंगामा खेज होने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील साहब ने बड़ा तफसीलन अंदाज में हमें एक्सप्लेन किया। अब जी, स्मॉल इंडस्ट्री और घरेलू सनत से वाबस्ता अफराद ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं हर साल ही। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुल्तान में पावर लूम्स के कारीगरों ने क्या मुतालबात किए हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। मुल्तान में पावर लूम्स इंडस्ट्री के कारीगरों और मालकान ने बजट से उम्मीदें लगा ली। सैकड़ों मजदूर उजरत में इजाफा और टैक्सेस में कमी के ख्वाहिशमंद हैं ताकि स्मॉल इंडस्ट्री एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन हो सके। 1400-1500 रुपये का काम करते हैं रोज़ का, और इसमें ना तालीम पूरी होती है, ना अद्वियात ले सकते हैं हम। घर का राशन, बिल, बिजली का, ये सब पूरा करना ना बहुत मुश्किल हुआ बड़ा इस वक्त। काम नहीं है, सुबह से आ जाते हैं, बैठ के चले जाते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि आप मेहरबानी करें, कोई बजट में अच्छा कोई पैकेज दे मजदूर आदमी को। सनतकार कहते हैं पावर लूम्स की अपग्रेडेशन, धागे, कपड़े और दीगर अशिया की कीमतों में कमी से छोटी सनतों को मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। 1 लाख से ज़्यादा पावर लूम मुल्तान में थी, जो कम होके तकरीबन आधी रह गई। इसमें से हमारे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए, बहुत से लोग जो पावर लूम पे काम करने वाले थे वो बेरोजगार हो गए। मईशत को मजबूत करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्री पर तवज्जो देना होगी ताकि डूबती हुई सनत को बचाया जा सके। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, सम्मा मुल्तान।
اچھا اب دیکھیں نا، آپ کا ہمارا ہم سب کا یہی سوال ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ کتنا عوام دوست ہوگا، IMF اس بجٹ پر کتنا اثر انداز ہوگا اور کاروباری طبقے پر بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے؟ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب۔ خاقان صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ پرو پیپل بجٹ ہوگا یا پرو IMF، کیا کہیں گے آپ؟ دو ہی ٹرمز ہیں، ظاہر ہے اسی پر پرکھنا ہے ہم نے۔ ٹرائی اینڈ فرسٹ ایکسپلین کہ اس گیون کانٹیکسٹ میں پاکستان کے لیے پرو پیپل بجٹ کیا ہو سکتا ہے۔ جی یہ درست ہے کہ اس کا مطلب ہوگا کہ ہم انکم سپورٹ میں لوگوں کو مدد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مینوفیکچرنگ پہ جو 54% ٹیکس ہے اس کو کم کریں تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پرسنل انکم ٹیکس کا جو پہلا سلیب ہے 50,000 سے ہی ہم شروع کرتے ہیں اس کو ٹیکس کرنا، اس کو بڑھا کر ہم میرا خیال ہے 60 یا 70,000 پر لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک پرو پیپل بجٹ وہ ہو جس میں ہم ٹیکس کی آسانیاں پیدا کریں، ٹیکس فائلنگ کو آسان کریں، ٹیکس کے فارم کو آسان کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو جی ایس ٹی 18% پہ ہے اس کو جب ہم براڈ بیس کریں تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کو براڈ بیس کرنے کا مطلب اس میں سے جو شرح ہے 18% اس کو نیچے لانا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ 12.5% کی شرح پہ جی ایس ٹی شروع کیا گیا تھا جو اب 18% پہ چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جس طرح کا کیپٹل ویلیو آن فارن ایسٹس لگاتے ہیں میرا خیال ہے اس میں سے بھی نکل جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ مساوی کرنے کے لیے ہم پراپر ساری انکمز کو ٹیکس کریں۔ سو اے گڈ بجٹ which means what you want as a people friendly budget would be like this۔ کیا ہم یہ سب کام کر پائیں گے؟ That really depends کہ ہم IMF سے کتنا اچھا نیگوشیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جو سٹیبلائزیشن ہے اس کو انویسٹیبلٹی میں بدل سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا بجٹ میں عوام کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ سخت فیصلے آنے والے ہیں، یا عوام سے ایک فیکٹر یہ بھی آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاشی حقائق کو چھپایا جا رہا ہے، کیسے اس کے اوپر کامنٹ کریں گے آپ؟ پاکستان میں اس وقت ایک میکرو سٹیبلٹی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افراط زر میں کمی ہوئی ہے، بیرونی خسارہ پاکستان کی جو فسکل یعنی کہ جو ہمارے مالیاتی خسارہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اور کماتے ہیں ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ لیول، وہ بھی کچھ 7% جی ڈی پی کا ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا خسارہ اب وہ 5% کے قریب ہے۔ اور پرائمری یعنی کہ اس میں سے ڈیٹ سروسنگ نکال دیں تو ہم 1 سے 1.5 سے 2% کی سرپلس میں آ گئے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی سچویشن۔ بٹ پاکستان کی جو ڈیفیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ ہائر باؤٹ آف ٹیکسیشن اور اس طرح سے کی گئی ہے جبکہ اکانومی کو ایک جسے کہیں گے ڈیمانڈ توڑ کر سلو کر دیا گیا، اور جو سٹیبلائزیشن ہے اس میں ایک عام آدمی پہ بھی چونکہ آپ نے 160 روپے پیٹرولیم لیوی کا اجرا کیا تو وہ بھاری پڑا۔ سو یہ سٹیبلٹی جو ہے اٹ کمز لائک اے ہارڈ ون سٹیبلٹی۔ اگر اس کو سمجھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اب ہمیں حکومت کے طرز پہ بہت سے ایسے کام کرنے ہیں کہ حکومت کے اپنے جو اخراجات ہیں وہ اس بجٹ میں کم ہوتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو یہ محور ہوگا اس چیز کا کہ ہم حکومتی سطح پر بھی much beyond austerity structures کو ٹھیک کرنے میں بلیو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی آنے والے دنوں میں ہم زندگی آسان بنا سکیں اور انویسٹیبلٹی کریٹ کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا سمجھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کی گفتگو سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے میں ناکامی کی قیمت ایک بار پھر عام آدمی سے وصول کی جائے گی؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال سامنے رکھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے ممالک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں ایک ٹیکس ٹو جی ڈی پی یا ایک نمبر پہ پہنچنا ہے۔ میں یہ سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں چند کہ اتھارٹیز کو سوچنا کیا چاہیے اگر ہم ایک پیراڈائم شفٹ کرنا چاہیں اس بجٹ میں، کہ کیا جو ہم ٹیکسیشن کے میجرز لے رہے ہیں یہ ملک کی پیداواری صلاحیت، انویسٹمنٹ، ایکسپورٹس اور انفارمیلٹی سے نکال کر فارمل بزنسز میں لانے کو مدد کرتا ہے؟ تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی دکھائی دیں گی جو مینوفیکچرنگ کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے بجٹ میں۔ ایک چیز جس کا ذکر میں نے پہلے نہیں کیا اور میں اس کو ٹیکس سے بھی اوپر سمجھتا ہوں ان فسکل کنسولیڈیشن، وہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں
both at the federal level and at the provincial level, वो किस तरह तब्दील करेंगे? पाकिस्तान में इनकम सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये वो सब्जेक्ट है डिवॉल्व हो चुका है। 17 वफाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, ज़कात, उशर, हज, ये जो एजुकेशन, हेल्थ, ये सब डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं। पर वफाक आज भी डेवलपमेंट में भी और मिनिस्ट्रीज भी चला रही है। पावर सब्सिडी के बिल में जो सब्सिडी जाती है, जिसको टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी कहते हैं, मुल्क का जो एक जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म टैरिफ है, इसको बनाने के लिए जाती है। वक्त आ गया है कि डिस्कोस को आपस में compete करने दिया जाए पब्लिक सेक्टर में भी। सो इस सब्सिडी से वेरी वेरी वैल्यूएबल इनसाइट, थैंक यू वेरी मच। माहिर माशियात डॉक्टर खाकन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ा मुफस्सल अंदाज में बजट क्या हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपने समा के नाज़रीन को बताया। तो जनाब, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का फैसला कुन मरहला, सियासी पारा हाई है। मुख्तलिफ जमातों ने इंतखाबी मुहिम अब तेज़ कर दी है। उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए मैदान में सरगर्म हैं। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूसों और रैलियों का सिलसिला ज़ोरों शोर से गिलगित बल्तिस्तान में जारी है। बिल्कुल ऐसे ही फवाद, जहां उम्मीदवार अपने इंतखाबी मंशूर, तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के वादों के जरिए वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गली मोहल्लों से लेकर जो विजुअल्स भी हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, मरकजी शाहराहों तक आप देख सकते हैं, इंतखाबी रंग काफ़ी नुमाया नजर आ रहे हैं। हर सियासी जमात अपनी भरपूर ताकत के साथ इंतखाबी मार्के की तैयारियों में मसरूफ है, और ये आप देख सकते हैं रैलियों की सूरत में बाकायदा जो इंतखाबी गहमा गहमी है वो जारी है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान 7 जून को सजेगा और 24 जनरल नशिस्तों पर वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबी मार्के के लिए कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूस और रैलियां अरूज पर हैं। मखसूस नशिस्तों की 9 है, जिसमें 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए रखी गई हैं। मखसूस नशिस्तों को मिलाकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में सीटों की तादाद 33 हो जाती है। सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों का फिगर मैजिक नंबर है। गिलगित बल्तिस्तान में अहल वोटर्स की तादाद 9,58,480 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,000, खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,000 है। 24 नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में उतरे हैं। सबसे ज़्यादा 23 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। मुस्लिम लीग नून 22 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ ने 11 उम्मीदवारों को टिकट्स जारी किए हैं। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10 उम्मीदवार और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में शरीक हैं। तो फातिमा ने बड़े अच्छे तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से पूरा अहाता किया। और अब हम आपको ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की इजाज़त मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ने NOC जारी कर दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान रवाना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नवाज शरीफ कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में जलसों से खिताब और नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। तो आज पहुंच रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान। और जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए सियासी दंगल सज चुका है। सियासी जमातों और उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ चुकी है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि जी कैसे गहमा गहमी जारी है इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात, सियासी दंगल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। GBA2 गिलगित के वोटर्स ने शर्त रख दी। कहते हैं बिजली, पानी, सेहत समेत बेरोजगारी के मसाइल हैं जो उन्हें हल करा सकता है। वोट उसी का होगा। गिलगित बल्तिस्तान में देखा जाए तो सबसे जो बेसिक जो इशू है वो तवील बिजली की लोड शेडिंग का है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो हेल्थ की जो है नाकिस फैसिलिटीज़ है। हेल्थ जो है, एजुकेशन और साथ में पावर
का जो है ये बड़ा इशू है, और इसके साथ इंटरनेट का भी इशू है। वोटर्स को मनाने के लिए उम्मीदवार भी हैं सरगर्म। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने रैलियां निकाली, नून लीग भी है मैदान में। GBA 20 गजर 2 से IPP उम्मीदवार खान अकबर खान ने भी तरक्की का राज बता दिया। हम तमीर और तरक्की पे काम कर रहे हैं और लोगों की खुशहाली के हवाले से काम कर रहे हैं। यूथ को पावरफुल बनाने के लिए, यूथ के मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरीन लाहेअमल लेके आए हैं। तो हमारी पार्टी के जो सरबराह है अब्दुल अलीम खान साहब, वफाकी वज़ीर मवासिलात है, उसकी सरबराही में GSR रोड जो तमीर हो रही है और बेहतर तरीके से काम हो रही है। उधर GBA 16 दियामेर 2 में भी इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। तलबा, नौजवान और बुजुर्ग वोटर्स IPP उम्मीदवार अतीकुल्ला एडवोकेट की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। इस इलाके में उनके जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने बड़े काम किए, तरक्याती काम किए हैं। यहाँ का जो गरीब है उसके लिए, स्पेशली उसके लिए, ठीक है, नालों के अंदर आप चले जाएं, उनकी बड़ी खदमात हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अलीम खान साहब जो हैं चेयरमैन IPP, वो अपनी बजात खुद अपनी हिसाब से भी इस इलाके के अंदर बड़े काम प्रोजेक्ट्स देंगे इंशाल्लाह। दियामर में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए, मैंने इसलिए अतीकुल्ला का इंतखाब किया और इंशाल्लाह अतीकुल्ला दियामर में तारीखी रिकॉर्ड काम करके दिखाएंगे। गिलगित के सर्द माहौल में सियासी पारा तो हाई है, ताहम फातेह का फैसला 7 जून को होगा। तो जनाब, फातेह का फैसला तो 7 जून को होगा और ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 की गहमा गहमी उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। क्या मुस्लिम लीग नून गिलगित में हुकूमत बना सकती है? इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान क्या कहते हैं, उनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मंजर शिगरी। उनकी जानिब चलते हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात का जो आखिरी जो मरहला है वो जारी है, इस वक्त जलसे भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार है अपने रवायती हरीफों के साथ GBA 2 में। हम उन्हीं से पूछते हैं। जहाँ जाते हैं लोग जो है वो इनसे बेजार हैं और मुस्लिम लीग नून को वेलकम कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इनमें से कौन मुकाबले में आएगा, वल्लाहु आलम। मंशूर का अहम तरीन जुज़ किस चीज़ को समझते हैं? मंशूर का अहम तरीन जुज़ जो है वो रोशन और डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान है। यानी गिलगित बल्तिस्तान को अगले 2 से 3 सालों में इस लोड शेडिंग की जिन से जो है वो निजात दिलाना है गिलगित बल्तिस्तान को। जो पंजाब में इनिशिएटिव्स मरियम ने उठाए हुए हैं, मरियम साहिबा ने, उन इनिशिएटिव्स को हमने गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो रिफ्लेक्ट करना है, ताकि लोगों में एक पजीराई पाई जाती है मरियम के इनिशिएटिव्स पे। और मुझे आज खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल गिलगित में फर्स्ट जो है वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की पहली जो है वो एंजियोग्राफी गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में होने जा रही है। तो GB के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है कल, कि फर्स्ट जहाँ एंजियोग्राफी ज्ञान में शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपने सुना कि हफीज़ुर रहमान साहब अपनी जमात और अपने हलके से खुद मुंतखब होने के लिए बड़े पुरुमीद नजर आते हैं। जी, तो जी, हमारा फेवरेट सेगमेंट क्वेटा के बुलंद बाला पहाड़ शहरियों में हाइकिंग का रुझान बढ़ रहा है। दुश्वार गुजार रास्तों पर थका देने वाला जो सफर है ना, सेहत की जमानत बनने लगा है। बिल्कुल, नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में आप भी देखिए। पहाड़ों की खामोशी में गूंजती कदमों की आहटें, कुदरती माहौल से मोहब्बत और दुश्वार गुजार रास्तों पर कई किलोमीटर तक का सफर। ये पहाड़ अब सिर्फ मंजर नहीं बल्कि सेहत का जरिया बन चुके हैं। शहरी कहते हैं रोजाना वॉक और हाइकिंग से न सिर्फ जहनी सुकून मिलता है बल्कि दिन भर की थकन भी दूर हो जाती है। यहाँ पर वॉक बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। आजकल जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं और खाने पीने खा रहे हैं, ये तो हमारे सेहत को बहुत बर्बाद कर रहा है। अपनी हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर होती है तो उसी के साथ आप बेहतर सोच सकते हैं। मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो महसूस करता हूँ कि मेरी स्लीप अच्छी होती है, मेरा हज़मा बहुत बेहतर है, मेरी फिटनेस बहुत बेहतर है। ख़वातीन और बच्चों के साथ साथ उम्र रसीदा अफराद भी रोजाना इस ट्रैक पर वॉक और हाइकिंग के लिए आते हैं। 90% जो बीमारियां हैं इंक्लूडिंग डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये सब इन्फ्लेमेटरी बीमारियां हैं। तो और ये इनकी जड़ जो है वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन को कम करने के लिए इस किस्म की वॉक करना, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। कोयटा के बुलंदो बाला पहाड़
अब शहरियों के लिए सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि सेहत बख्श तर्ज जिंदगी की अलामत बनते जा रहे हैं। ये मुश्किल लेकिन मौसर वर्जिश ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों को कंट्रोल करने में मददगार भी साबित होती है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा।